Hello students, happy new year to all of you. Hope you have enjoyed your holidays very well. Now back to pavilion, back to studies. थोड़ा सा focus लाना है वापस in the studies. We were discussing about the chapter 8 motion of class 9 science. We have seen many videos of that, we have attended many lectures, but today we are going to learn about uniform circular motion. What do we mean by uniform circular motion? So as the name suggests, what is the name of the topic? That is uniform circular motion. So as the name suggests, first circular motion. Circular motion, it means an object is moving on a circular path. An object is moving on a circular path. And what do you mean by uniform motion? Uniform motion means it is a moving with a constant speed. It is moving with a constant speed. Not speed, it is speed. It is constant speed. अगर इसकी बात करें बेटा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है. फॉर एग्जांपल कोई एक बाइक है जो रेसिंग ट्रैक पे एट कांस्टेंट स्पीड, दैट इज सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम कंसिडर करें तो 40 मीटर पर सेकेंड. आपको जो यूनिट लेना है ले लो, दोनों इक्वल नहीं होते, उतना आपको पता चलना चाहिए दैट 40 किलोमीटर पर आवर इज नॉट इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें कुछ ना कुछ लेना था तो हमने ले लिया. नाउ an object is moving on a circular path but with a constant speed, then it is known as uniform circular motion. Uniform circular motion. अगर यहाँ पे हम देखें then the speed is constant. Speed is constant, but what do you mean by velocity? Velocity क्या होगा बेटा? यहाँ पे speed तो constant है, but is velocity constant? Is velocity constant? No. Here speed will be constant, but there won't be any specific constant velocity. Velocity can increase, decrease depending upon the path. अगर straight line path होता बेटा, अगर वो straight line path होता, then it would be equal. Constant speed is equals to constant velocity. When we are moving on a straight line path, एक ही path पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका speed होगा बेटा, वही आपका velocity होगा, because on a straight line path distance is equal to displacement. distance और displacement एक ही हो जाता है. क्लियर? तो जब distance और displacement एक है तो obvious होगा कि speed और velocity एक ही होगा. when distance is equals to displacement, then speed will always be equals to velocity. speed and velocity क्या हो जाएंगे बेटा? always equal रहेंगे. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी जो भी मोशन होगा दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर. और यहाँ पे अगर इसके ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बंद हो जाए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है. याद करो कि जब भी अगर कोई हम सर्कुलर मोशन की बात करें हम बेटा, तो सर्कुलर मोशन में कोई भी जगह पे अगर हम मोशन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा? वो बनता है टेंजेंट. क्या बनता था? याद आया? That a line touching to the circle at one only one point. Tangent is a line touching to the circle at one and only one point is known as tangent, and the motion of an object is known as tangential motion. तो ये जो मोशन बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं that is tangential motion. That is tangential motion. Tangential motion यानी कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और उसका इंजन बंद पड़ गया, क्लियर, कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, अभी वो मूव नहीं कर सकता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा, वो यहाँ पे से स्ट्रेट लाइन पाथ जाएगा. अगर यहाँ पे बंद पड़ा तो वो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे बंद पड़ा तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्शन उसने छोड़ दी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा. तो मतलब जिस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट से वो उसका फोर्स लग जाता है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से हो जाता है तो ये डायरेक्शन में जाएगा. सो इट मींस कि अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो ये डायरेक्शन कैसी है बेटा? तो ये डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं. इसे कौन सी डायरेक्शन कहते हैं बेटा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट? टेंजेंट मींस इट इज अ लाइन दैट इज टचिंग टू द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. सर्कल को हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करती हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट. और यहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल मोशन. दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है,
और मोशन भी कौन सा है, सर्कुलर पाथ पे। तो नाम के हिसाब से याद रखना है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर यानी उन्हें सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन यानी मूवमेंट, स्पीड। क्लियर? तो उतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, इसीलिए उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस किस का देखा जा सकता है, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी सीन बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये हम आइडियल कंडीशंस पे लेते हैं। वाई? बिकॉज अर्थ का ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर नहीं है, वो सिर्फ हम कैलकुलेशंस के टाइम पे लेते हैं। अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, अर्थ का ऑर्बिट है इलिप्टिकल। कैसा ऑर्बिट है बेटा, इलिप्टिकल, ओवल शेप्ड। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का, तो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। लेकिन हम कंसिडर हमेशा सर्कुलर करते हैं, बट दैट इज ऑलवेज इलिप्टिकल। इलिप्स होता है सर्कल में, जैसे सेंटर होता है ना, सर्कल का जैसे सेंटर होता है, इलिप्स के दो सेंटर होते हैं, और सेंटर तो वैसे कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर से सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। कहीं पे भी देखो तो रेडियस होता है। यहाँ पे कोई आपको ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां से सभी पॉइंट का डिस्टेंस, क्या आप ही सपोज करो यहाँ से अगर मैं गिनूं तो यहाँ पे कम होगा, इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में रखो तो ऊपर कम होगा, इस तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोई सेंटर ऑफ द इलिप्स मिलता ही नहीं है, इसे इलिप्स बोलते हैं। इसे जैसे सर्कल बोलते हैं, इसे इलिप्स बोलते हैं। इसे जैसे सर्कुलर बोलते हैं, उसे इलिप्टिकल बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इलिप्स जब होता है, उसमें कोई सर्कल, सॉरी, इलिप्स का कोई सेंटर नहीं होता है, उसके फोकाई होते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकाई होते हैं, और वो भी कितने, दो होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक यहाँ पे होता है। तो उनके सेंटर के जैसे दो फोकाई होते हैं, और इसी के अराउंड ये अर्थ का ऑर्बिट है, और इन दोनों फोकाई के में से कोई एक फोकस पे, दोनों फोकाई में से कहीं एक जगह पे सन होता है। हर एक प्लैनेट का ऐसा फिक्स है, हर एक प्लैनेट का। जैसे अगर मार्स देखे तो मार्स का ऑर्बिट भी ऐसा ही होगा, सर्कुलर तो नहीं होगा, तो उसके भी दो फोकाई होते हैं। दोनों फोकाई में से कोई एक फोकाई पे कौन रहेगा, सन होगा। तो ये फोकाई चला गया, तो यहाँ पे सन है, इसी के अराउंड हमारा जो मार्स होगा वो घूमता रहेगा। ये मार्स यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है। समझ में आया? तो इलिप्स का ऐसा पाथ के लिए होता है, ये केपलर्स लॉ के हिसाब से होता है। केपलर करके एक यहाँ पे हमारे पास फिजिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीजें समझाई थी कि भाई प्लैनेट्स है, नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है, तो उनका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ नहीं होता है, उनका इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्स के अराउंड घूमते हैं। सर्कल का जैसे सेंटर होता है, वैसे इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, दो सेंटर होते हैं, उसे हम फोकाई कहते हैं। सेंटर तो नहीं कह सकते, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। और दोनों फोकाई में से कोई एक फोकाई पे सन होता है, और उसी के अराउंड कोई भी प्लैनेट घूमता रहता है। सिमिलरली यही चीज पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये क्या बन जाता है, ये एक फोकाई बन जाता है अर्थ, तो ये जो ऑर्बिट बन जाती है वो किसकी बनेगी बेटा, वो बन जाती है मून की ऑर्बिट। तो मून की ऑर्बिट भी सर्कुलर नहीं है, मून की ऑर्बिट भी सर्कुलर नहीं है। लेकिन वो छोड़ो, वो हमारा थोड़ा सा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था, आपको डू यू नो में दिया होगा शायद। लेकिन हम बैक टू द पेविलियन यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें बेटा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, क्योंकि हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो हर एक पॉइंट की टेंजेंट अलग अलग बनेगी, तो इसीलिए यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इसका मोशन में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और इसीलिए इसके जो मोशन है उसका डायरेक्शन कैसा बोला जाता है, टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे पहुंचा है वहां पे उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में। क्लियर? सो दैट इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड देयर विल बी अ फोर्स, कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, और इस तरीके का फोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ही पूरा ऐसा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर तो पूरा इसी का दिया हुआ है, दैट इज ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेविटेशन। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा हमारे पास। तो ये सिंपल से टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, सर्कुलर यानी सर्कुलर पाथ। यहाँ पे फोर्स कहाँ से लगता है, सेंटर से, इसीलिए इस तरीके के फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है उसको इस तरफ खींच रहा है, हर एक पॉइंट में ये ऑब्जेक्ट है उसको इस तरफ खींच रहा है, इसलिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, उसके सेंटर की तरफ खींच रहा है। समझ में आया?
तो एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मून है वो ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर से फोर्स लगता है, इसीलिए उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? सो दैट इज ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर से फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर से फोर्स लगता है, सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा इसका मोशन वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक मार्क में बहुत पूछा जाएगा, फिर मत बोलियो कि ये बहुत ही सिंपल से। और दूसरी चीज तो इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है। क्लियर? इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने पढ़ लिया है, लेकिन हम रिवाइज करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। हमने ग्राफ देखना बाकी है कि हमें ग्राफ जो चाहिए वो ग्राफ नहीं मिले हैं, वो ग्राफ हमें पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ किसका पढ़ सकते हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखनी है, तो लिख लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर? वरना एक बार लिख लो पॉज करके। तो हम इसके बाद पढ़ सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है बेटा हमें? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो उसके पहले तो आपको वेलोसिटी जानना है। व्हाट डू वी मीन बाय वेलोसिटी? तो भाई स्पीड के मासी का लड़का होता है उसे कहते हैं वेलोसिटी। वैसे तो मासी की लड़की होगी, नाम सुन के वेलोसिटी, है ना? तो स्पीड की मासी की लड़की वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम, क्लियर? तो आपको यहां से जानना है बेटा, आपको यहां से क्या जानना है कि आप ग्राफ बनाना चाहते हो, वेलोसिटी ढूंढना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ पेपर है, या तो फिर आप नोटबुक में भी बना सकते हो, क्योंकि देखो मेरे पास भी ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन आपके लिए बेटर होगा आपके पास स्केल है, पेंसिल है, इरेजर है, आपको गलत हुआ तो रब भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो बेटा तो मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। क्या लेना है बेटा? टाइम। और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या लेता हूं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कि भाई जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में आप करोगे, चलो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, तो 5 मीटर के गैप में मैंने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25। यहां पे मैं सेकंड्स लेता हूं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो 2-2 सेकेंड के गैप में मैंने यहाँ पे टाइम लिया है 8 सेकेंड्स। आप अपने हिसाब से स्केल चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 15 मीटर इन 3 सेकेंड, 20 मीटर इन 4 सेकेंड। तो इसी तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है कि भाई 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मेनी सेकेंड्स बेटा? इन 3 सेकेंड्स। क्लियर? नाउ 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। कि अगर हम 20 मीटर देखें तो बेटा 4 सेकेंड्स में, 25 मीटर देखें तो 5 सेकेंड्स में। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर पे कितना है? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 सेकेंड यहाँ पे बीच में होगा, तो ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा कौन सा है? 10 मीटर और 2 सेकेंड। तो 10 मीटर यहाँ पे है, 2 सेकेंड यहाँ पे है, तो दूसरा पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा बेटा? दूसरे कलर की मार्कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे आया, बिकॉज 1 मीटर 1 सेकेंड 5 मीटर, 10 मीटर 2 सेकेंड, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तीसरा कौन सा है? 15 मीटर 3 सेकेंड, 15 मीटर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड यहाँ पे होगा, 15 मीटर यहाँ पे है। इन सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमें एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने लिया वही लिया हूं कि ये पॉइंट कौन सा है? 5 मीटर 1 सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 10 मीटर 2 सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 15 मीटर 3 सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 20 मीटर 4 सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 मीटर 5 सेकेंड। तो इन सभी पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है। और जब आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ग्राफ कैसा मिलता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन। क्यों कांस्टेंट मोशन? जो चीज हमने ली थी वो यहाँ पे कांस्टेंट होगी। कौन सी चीज हमने ली है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यानी वेलोसिटी, तो मोशन है तो कांस्टेंट कौन सा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो जो भी आपने फिजिकल मोशन क्वांटिटी ली हुई है वो कांस्टेंट होगी। कब? जब स्ट्रेट लाइन लिया है। लेकिन अगर कोई पाथ ऐसा मिलता है कि भाई हमने 5 मीटर यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर आपने किया 5 मीटर, मतलब आप रुक गए 1 सेकंड के लिए, अगेन 5 मीटर, अगेन 5 मीटर, 2-3 सेकंड के लिए नहीं हिले, फिर आप अगेन 10 मीटर डिस्टेंस, अगेन 5 मीटर ट्रैवल करते हैं 5 सेकंड्स। तो इसका पॉइंट क्या होगा? देखो आप यहां पे गए, फिर कितने सेकंड्स तक वहीं के वहीं रुके? 4 सेकंड्स तक। 4 सेकंड यानी यहां पे, तो आप यहां पे गए, फिर वहां से आपका मोशन कैसा बना बेटा? देखो ये सेम मोशन यहां पे, यहां तक दोनों साथ में, फिर 4 सेकंड्स तक वो वहीं का वहीं रहा। 5 मीटर, आगे डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं, सिर्फ टाइम बढ़ा। देन 10 मीटर इन 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड में 10 मीटर, तो ये 10 मीटर वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिल सकता है। कभी कभार आपको ग्राफ ऐसे भी मिल रहे हैं, कभी कभार ग्राफ ऐसे मिल रहे हैं कि पहले तो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा था, डिस्टेंस नहीं जा रहा था, फिर अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई, अचानक से उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट है। तो मतलब यहाँ पे जो ये दो रेड लाइंस दिख रही है उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अभी कैसे पता चलेगा कि ये वेलोसिटी है? अपॉन द क्वांटिटीज दैट वी हैव टेकन ऑन द ग्राफ, कि यहाँ पे ग्राफ में कौन सी क्वांटिटी ली है? डिस्प्लेसमेंट लिया और टाइम लिया है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टाइम क्या होगा? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको यहाँ पे ढूंढना है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपको ढूंढना है तो आप क्या करेंगे बेटा? ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वहां पे कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए। देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज किया है, दूसरा ये पॉइंट चूज किया है। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माय सेकंड पॉइंट। ये बना दिया मैंने उसका स्लोप। इसे क्या कहते हैं? सर ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसे कहते हैं स्लोप। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और उसी 2 पॉइंट पे जो टाइम है, वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ढूंढना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 25 माइनस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15। अपन उसी तरीके से टाइम को माइनस कर देना है। ये पहले पॉइंट पे टाइम कितना है? 25 पे 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 5 माइनस 15 पे टाइम कितना था? 3 सेकेंड्स। तो 25 माइनस 15 दैट इज 10, 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी ढूंढ सकते हो ग्राफ के हिसाब से बेटा। अगेन 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 कुछ गलत नहीं है, ध्यान से देखो क्या किया बेटा हमने एक फर्स्ट पॉइंट चूज किया और हमने सेकंड पॉइंट चूज किया, उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम को सब्सट्रैक्ट किया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 25 था माइनस सेकंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पॉइंट का टाइम 5 था माइनस सेकंड पॉइंट का टाइम, तो 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? समझ में आया? आपको इन दोनों पॉइंट का ट्राई करना है। देखो ये पॉइंट 3 ले लो और यहां पे पॉइंट 4 ले लो। क्लियर? ये सेकेंड पॉइंट को अगेन कंसीडर करो, तो 3 और 4 के बीच में वेलोसिटी क्या रहेगी? ट्राई करो। वेलोसिटी क्या होगा? तो आपको डिफरेंस करना है। थर्ड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 20, फोर्थ पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 15, सो 20 माइनस 15। आप खुद से करना चाहो तो एक बार पॉज करके भी कर सकते हो। तो थर्ड पे यहाँ पे टाइम कितना है? यहाँ पे टाइम है यानी 20 पे टाइम कितना था? 4 सेकेंड। 15 पे टाइम कितना है? 3 सेकेंड। So 4 minus 3. So 20 minus 15 that is 5. 4 minus 3 that is 1. That is 5/1 यानी 5 meter per second. That is 5 meter per second. See, here also we got 5 meter per second. Here also we got 5 meter per second. Why? Because velocity is constant. Because velocity is constant. समझ में आया बेटा? अगर आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ, तो कौन सी 2 चीजें ग्राफ में लेनी पड़ेगी? तो डिपेंड्स अपॉन दी फॉर्मूला, जो न्यूमरेटर में हो y एक्सिस पे, जो डिनोमिनेटर में हो x एक्सिस पे। जो न्यूमरेटर पे हो y एक्सिस पे, जो डिनोमिनेटर में हो x एक्सिस पे। अभी मुझे इंडिकेट करना है, मुझे लाना है बेटा एक्सेलरेशन। आई वांट टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑन द ग्राफ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, हमने सीखा हुआ है बेटा। We have also solved the numericals on the basis of the acceleration. So what is the formula of the acceleration? याद करो जल्दी से फटाफट। तो acceleration का फॉर्मूला होता है acceleration is equals to velocity upon time। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, वो सही फॉर्मूला में ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी तो,
a is equals to v minus u upon t. This is the formula of the acceleration. But numerator में है क्या? Final और initial. But both of them are velocities. t for time. तो अगर आपको ग्राफ बनाना है बेटा, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? जो न्यूमरेटर पे है वो y एक्सिस पे, जो डिनोमिनेटर में वो x एक्सिस पे. तो यहां पे आ गया हमारा टाइम. टाइम का यूनिट क्या होगा? सपोज सेकंड, तो हमने लिख लिया सेकंड. वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लेंगे ऑन दी y एक्सिस. तो वेलोसिटी क्या है बेटा? तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. तो यहां पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है कि देखो ये ऐसा ग्राफ है और यहां पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. और यहां पे हमें टाइम दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां पे हमें दिया हुआ है टाइम. तो एक यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं. क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन. यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड. तो यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लो. अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो बेटा. देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 5. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 2. यहाँ पे टाइम कितना है? 2. और यहाँ पे टाइम कितना है बेटा? 4. तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन ढूंढना है तो वेलोसिटी क्या होगी? 5 माइनस 2. वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 that is 5 minus 2 यानी 3. 3 by 4 minus 2 that is 2. 3 by 2 यानी 1.5. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे ढूंढा बेटा? कैसे ढूंढा? जल्दी 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 देखो यहाँ पे कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया. पहले पॉइंट में वेलोसिटी क्या थी? 5. यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? तो हमारी वेलोसिटी थी 5. और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी 2. यहाँ पे टाइम कितना था? तो टाइम था 4 सेकेंड. और यहाँ पे टाइम कितना था? टाइम था 2 सेकेंड्स. तो हमने क्या किया? v माइनस यू अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स. तो 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 3 बाई 2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा? यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो, कोई भी फॉर्मूला देख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो. क्लियर? तो इसमें कोई नई चीज नहीं है बेटा. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. एक बार प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस आपको किस में से करनी है? टेक्स्ट बुक में से जो ग्राफ दिए उसमें से आपको वैल्यू ढूंढना है. कोई भी ग्राफ में कोई भी चीज दी है तो उसमें से आपको क्या कर लेना है बेटा? उसमें से आपको करना है कि वेरी गुड, कि उसमें से वैल्यू ढूंढनी है. कि ग्राफ है तो एक्सेलरेशन ढूंढना है. वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी मिलेगी. डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है तो स्पीड मिलेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी गिवन हियर आपको मिल जाएगा. फॉर्मूला के हिसाब से जो न्यूमरेटर में हो y एक्सिस पे, डिनोमिनेटर में है वो x एक्सिस पे ले लेना है. क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन आता है तो कोई ना कोई चीज क्या हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है. यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? वेलोसिटी मत बोलना. जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, जिसका स्लोप बन रहा है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यानी चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी जो होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन. अगर आपको वेलोसिटी ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा? वेलोसिटी. तो क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. क्लियर? अगर आपको स्पीड ढूंढना है बेटा, तो स्पीड ढूंढना है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. और अगर ये सारे के सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड. अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, हल्का सा भी मोशन चेंज होता है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड. वो कांस्टेंट नहीं हो सकते. कांस्टेंट कब होती है ये सारी चीजें? जब आपको ग्राफ स्ट्रेट मिलता है. यहां पे अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट है. अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि स्पीड एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर आपको स्पीड कांस्टेंट मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि सबके ग्राफ अलग अलग होंगे, ग्राफ अलग अलग रहेंगे.
कि भाई स्पीड के ग्राफ के हिसाब से आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? तो आपको उतना थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों ग्राफ इंटर रिलेटेड नहीं है। क्लियर? यहां पे देखो एक ग्राफ में बना रहा हूं, एक लास्ट एंड फाइनल थिंग, वहां से फिर हम लेक्चर एंड करेंगे। ये ब्लू लाइन आपको इंडिकेट करनी है। ये ब्लू लाइन में क्या दिख रहा है बेटा? यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 4 सेकेंड। कब? 0 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पे भी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। मतलब यहां पे वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो जब ऐसा कोई ग्राफ आता है तब उसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बट हियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐसे ग्राफ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कैसे आएंगे? मैंने बोला एग्जांपल्स ट्राई करो, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो सॉल्व करो, देन एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द ग्राफ। थैंक यू बेटा।